کہاں کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے. خیر ویڈیو سن لیا کریں, کوئی نہیں, 10-12-15 منٹ کی ویڈیو سن لیا کریں, ٹھیک ہے نا, آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. شوق سیکھنا ہے تو پھر سنیں, جو نہیں سیکھنے والے میں ان کو کہتا ہوں ہماری ویڈیو کو سکپ کر دیا کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ میں نے یہ چینل مونیٹائزیشن کے لیے بنایا کہ میں نے اس کو مونیٹائز کرانا ہے, کوئی ڈالر کمانے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. صرف یہ جو کنٹوٹے ہیں نا, جو بے لگام پھر رہے تھے, ہم نے ان کے لیے چینل بنائے. اصیل لور, سب سے پہلے میں آپ کو اپنے سون تول جوڑے کا شوق کرا دیتا ہوں. یہ بریڈر ہے سون تول, اور ساتھ اس کے مادی سون تول بلڈ میں, جو پیلے زہریلے مشہور ہیں سون تول, ٹھیک ہے. تو میں آج آپ کو سون تول کے بارے میں مکمل انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے نا معلومات دینے والا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی سون تول کے بارے میں, کسی قسم کی آپ کنٹروورسی کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اس بریڈ کے بارے میں کہ یہ سون تول پیلے جو ہیں ان کا بانی کون ہے, کون سا کلر ہوتا ہے ان کی, کیا کیا پہچان ہے, کیا کیا خوبیاں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. میں نے کہا پہلے میں آپ کو اپنے جوڑے کا شوق کرا دوں, اس کے بعد ڈیٹیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اصیل لورز, امید ہے سب دوست سباب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کا ہوسٹ عامر خان جی, ضلع میاں والی سے. اصیل لورز, ویڈیو کے شروع میں جو آپ نے پرندے دیکھے ہیں سون تول مادی اور نر, یہ آپ کے بھائی کا سون تول کا شوق ہے, اللہ پاک کی دین ہے. اصیل لورز, امروہہ کو ہم نے ڈسکس کیا. جتنی بھی ہماری میاں والی کی بریڈز ہیں پرانے اصیل, ٹھیک ہے, پرانے اصیل اولڈ بلڈ لائن ہیں جو ہماری میاں والی کے ہیں, انشاءاللہ سب کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. امروہوں کو ہم نے ڈسکس کیا اصیل لورز, 3-4 پارٹ پڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے چاروں پارٹ دیکھنے ہیں. اگر آپ نے امروہہ کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے تو چاروں پارٹ دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے. پیور لاسانی پہ میرے 3-4 پارٹ پڑے ہیں, تو آپ نے اگر لاسانی اصیل کے بارے میں جاننا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو لاسانی کے چاروں پارٹ یا 3 ہیں یا 4 ہیں جتنے بھی میں نے اپلوڈ کیے ہیں وہ سارے پراپر دیکھیں. پارٹ 1 سے دیکھیں, پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4. لاسانی کو ہم نے کلیئر کر دیا الحمدللہ, جو آج تک میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں کر سکا تھا, یوٹیوب پہ کوئی نہیں کر سکا تھا, جس طرح الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے. امروہہ کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. بڑی کنٹروورسی تھی امروہہ کو لے کے, لاسانیوں کو لے کے, الحمدللہ ہم نے ساری شوقینوں کی وہ کنٹروورسی, وہ پریشانی دور کی ہے. اصیل لورز, آج کا ہمارا ٹاپک ہے سون تول پیلے. سون تول پیلوں کی میں آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح پہچان کریں گے, پھر آپ کو پہچان کرنے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اصیل لورز, سب سے پہلے تو یہ جو سون تول پیلے ہیں ان کا نام سون تول کیوں پڑا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں پیلے رنگ کی وجہ سے. اب اس کے بارے میں 1-2 چیزیں مشہور ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ڈیرے والے نوابوں نے مرغا جو ہے نا وہ سونے کے بدلے تول کے لیا تھا, اس وجہ سے اس بریڈ کا نام سون تول پڑ گئے, لیکن میں اس چیز کو خاص نہیں مانتا. تو میرا جو خیال ہے اس کا نام جو سون تول پڑا ہے یا پیلے, یہ اس کے کلر کی وجہ سے. اس کا سونے کی طرح رنگ ہے, پیلا رنگ ہے, گولڈ کی طرح رنگ ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. اصیل لورز, کسی بھی بریڈ کی پہچان کرنی ہو نا, سب سے پہلے اس کا کلر دیکھا جاتا ہے. چاہے امروہہ کی کرنی ہو, چاہے لاسانی کی کرنی ہو, چاہے سون تول کی کرنی ہو, یا جو بھی بریڈ ہو, سب سے پہلے اس کا جو ہے نا کلر دیکھا جائے گا. تو پیلا کلر جب آپ کے ذہن میں آئے, میں ساتھ ساتھ تصویریں لگاتا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, پکچر میں ساتھ ساتھ لگاتا جاؤں گا اور آپ کو پہچان کراتا جاؤں گا آپ کی آسانی کے لیے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سون تول پیلے, تو پیلے کا ایک جو لفظ ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ یہ پیلے مرغے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیلا ایک کلر ہے. اصیل کے بیسک 4 کلر ہیں, ٹھیک ہے, لال, مشکا, پیلا, سابا. اس کے بعد جتنے بھی کلر بنے وہ کراسز کی وجہ سے وجود میں ہیں, خواہ وائٹ اصیل ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب سون تول پیلوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ تو پیلا ہے. اب پیلا کیسا رنگ ہے ان کا سر مسٹرڈ کلر, ٹھیک ہے نا. جو سون تول بریڈ تھی, جو سون تول پیلے تھے, ان کا مسٹرڈ کلر تھا, ٹھیک ہے. یا سرسوں کے جس طرح پھول ہوتے ہیں پیلے, اس طرح کا ان میں شیڈ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا کلر ہے مرغوں کا. ان کی گردن پیلی ہوگی, ان کی دم پیلی ہوگی, دم میں سریاں زیادہ ہوں گی پیلوں کی, ٹھیک ہے. جو ان کی مادی ہیں ان کی بھی گردن پیلی ہوگی, پیلا شیڈ دے گی, مسٹرڈ یا پیلا کلر دے گی, ٹھیک ہے. اور دم بھی اسی طرح پیلا یا مسٹرڈ ہلکا سا کلر دے گی, ٹھیک ہے, مادی کا. باقی شولڈر بھی ان کے جو شولڈر ہے اس پہ بھی مسٹرڈ یا پیلا کلر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پیلا اور بوز کی یہ ایک ہی بریڈ کا تقریباً 2 نام ہے, ٹھیک ہے, بوز کے یا پیلے. تو
जो सोन तोल पीले हैं ओरिजिनल, उनमें से कुछ ना कुछ बोझ के वो क्रॉसेस की वजह से बन जाते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी में जो बर्ड होगा वो मस्टर्ड कलर में या सरसों के जिस तरह फूल का कलर होता है पीले कलर में होगा, जो अच्छी हालत में होगा। ठीक है, असील लवर्स, पीले हमारे म्यानों के पास थे जी। पीले जो पीली ब्रीड थी, अमरोहा और मेठी जो पीर शालम शाह साहब थे ये उनके पास थे, और जो हमारे म्याने थे, ठीक है, सैयद, उनके पास थे सोन तोल पीले। ठीक है, इन्हीं का एक कज़न था म्यानों का, सैद अला बख्श, बिचवी बाला बखर वाली साइड पे, उसके पास ये ब्रीड थी। ठीक है, जहाँ से ये ब्रीड चली है ना सोन तोल पीले, ये या इनको सैद अला बख्श वाले पीले भी कहा जाता है। तो ये सैद अला बख्श थे, म्यानों के कज़न थे, बिचवी बाला बखर वाली साइड पे रहते थे, ये उसके पीले मशहूर हुए। तो उससे जो पीले थे वो इधर मियाँ वाली के जो हमारे म्याना फैमिलीज़ हैं उनके पास भी थे, उधर भी थे। ठीक है ना, उसी से फिर आगे पीले जो हैं वो आपके पास या हमारे पास या जिस भी अच्छे शौकीन के पास गए, ऐसे ही ये पीले गए हैं। ठीक है, तो पीलों की पहचान हम बता रहे हैं आपको। तो सर पीलों की जो खासियत थी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इनकी कलर की बुनियाद पे आप पहचान करेंगे। उसके बाद सर इनकी जो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बयान करूं, तो पीलों का जो फेस है, पीलों का फेस ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ना बहुत ज़्यादा गोल होता है। अमरोहों की निस्बत इनकी नोकें अमरोहा या मेठी की निस्बत कम मोटाई में होगी। ठीक है, छोटी मोटी होगी, मजबूत होगी, लेकिन अमरोहा मेठी की निस्बत कम मोटी होगी। ठीक है, और जो इनका फेस है अमरोहा मेठी की निस्बत थोड़ा सा लंबाई में होगा, ज़्यादा गोलाई में नहीं होगा। इनका जो ताज है वो बहुत बड़ा नहीं होगा पीलों का, जो अपना ओरिजिनल ताज है। ठीक है, ये खूबसूरत इनका ताज होगा, ये बिल्कुल ना बहुत छोटा होगा। जो मेरा आपने मुर्गा देखा है ना, मैं अपने भाइयों के साथ इसने नूरा कुश्ती की है ना, इस वजह से इसका ताज ख़राब हो गया, नहीं तो इसका ताज खूबसूरत जो है ना ताज बनता। ठीक है, तो सोन तोल जो पीले थे ना, इनका ताज बहुत बड़ा ताज नहीं होता, ना बहुत छोटा ताज, इनका दरमियाना सा ताज होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल है। फिर क्रॉसेस में आगे ताज में भी ज़ाहिर फ़र्क आता है। इनकी नोक नली का जो कलर है ना, ये बोझ की कलर होता है। ठीक है, जो सोन तोल पीला होगा ओरिजिनल ब्लड में, अच्छे ब्लड में, अच्छी हालत में, फिक्की पीली नोक नली का इनका कलर होगा। ठीक है, इनकी आँख जो है उसका कलर भी हल्का सा बोझ का होगा। ठीक हो गया, साफ आँख होगी, हल्का सा बोझ का कलर होगा और उसमें डोरे भी होंगे। ठीक है, हल्के हल्के डोरे भी होंगे। उसके बाद इनकी जो जिल्द है, जो सोन तोल पीले थे, पुराने पीले थे, ओरिजिनल पीले थे, इनकी सर आप इनके बाल उठाएंगे तो इनकी नीचे से स्किन भी पीली होगी जी। कुछ इनमें सफ़ेद मतलब थोड़ा सा टच भी होगा, पीले सफ़ेद का कम्बिनेशन होगा जो सोन तोल ब्लड लाइन है। लेकिन इनके जब बाल आप उठाएंगे ना, जिस्म से पशम उठाएंगे, तो इनका नीचे से जो है ना ये स्किन जो है वो पीली होगी, जो ओरिजिनल पीले ब्लड में होगा। अब तो खैर ऐसा इतना ज़्यादा इनमें नहीं होता, परिंदों में निकलते भी हैं, होता भी है, क्योंकि अब तो ये किसी न किसी हालत में मौजूद है ना। बिल्कुल अब 60-70 साल पहले वाली चीज़ें तो नहीं हैं, किसी न किसी अच्छी हालत में मौजूद हैं, चाहे अमरोहे हैं, चाहे पीले हैं, चाहे लासानी हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि जो ओरिजिनल सोन तोल पीले हैं इनका कलर मस्टर्ड होगा या पीला होगा। ठीक है, इनकी नोक नली का कलर जो है ना वो फिक्का पीला होगा, बोझ की कलर होगा। इनकी आँख का कलर भी हल्का सा बोझ की होगा, आँख में हल्के से डोरे भी होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी स्किन, इनके जो आप ऊपर से पशम उठाएंगे तो नीचे पीली होगी। ठीक है, तो ये हैं जनाब प्रॉपर इनके फेस का मैंने आपको बता दिया, ताज भी बता दिया। ठीक है, पंजी इनकी छोटी होगी जिस तरह हमारे पुराने मियाँ वाली के असील हैं। ठीक है ना, पंजी इनकी छोटी होगी। इनकी जो नली है वो गोल होगी, चौरस नहीं होगी पीले की। ठीक है ना, जो ओरिजिनल पीला है उसकी गोल होगी। आगे इनमें कहीं पे मेठियों का सावों का क्रॉस होगा तो फिर चौरस भी हो सकती है। ठीक है सर। बाकी असील लवर्स, ये जो प्योर सोन तोल हैं ये को बड़े मोरे वज़न के मुर्गे नहीं थे। बड़े मोरे वज़न के मुर्गे कैसे होते हैं? 3 kg या 3 kg प्लस के जो मुर्गे होते हैं वो बड़े मोरे वज़न में आते हैं। ठीक है, तो ये इनका कम से कम जो मोरा वज़न था वो 2500 था, 2500 ग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2800। ठीक है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि कम से कम 2500 मोरे वज़न के, और आगे फिर 2600, 2700 या मैक्सिमम 2800। तो ये था इनका जो है ना वज़न। तो नॉर्मली जिस तरह हमारे मियाँ वाली के असील्स होते हैं 2600, 2800, 2700, तो ये भी उसी तरह के मुर्गे थे। बाकी यार जो पीला परिंदा है ना, जो प्योर पीला असील है, पीला परिंदा है, ये ज़हीन बहुत ज़्यादा है। इनकी क्वालिटियाँ बयान कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़हीन बहुत ज़्यादा है जी, सियाना परिंदा है पीला, ठीक है। और ये कांटों की मशीन भी है पीला, सियाना भी है और कांटों की मशीन भी है। ये बड़ी नायाब ब्रीड है सोनतोल। जो पीला है, जो सोनतोल पीले हैं, ये खालिस ब्रीड है और नायाब ब्रीड है, ठीक है ना। ये खालसों में आती है और ये चंद शौकीनों के पास ये चीज़ें होती हैं, बड़े शौकीनों के पास ये चीज़ें होती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अमरोहा, लसानी, मेठी, पीले हर शौकीन के पास आपको नहीं मिलेंगे। उनके को पर मिलेंगे या क्रॉस मिलेंगे, लेकिन हर खुडे में आपको अच्छी हालत में नहीं मिलेंगे। कि अच्छी हालत में अमरोहा किधर किधर है, अच्छी हालत में मेठी किधर है, अच्छी हालत में लसानी किधर है, अच्छी हालत में पीले किधर है। ज़ाहिर है अरसा गुजर गया है ना। तो मैं तो कहता हूँ अगर अच्छी हालत में भी चीज़ें हैं तो उनको प्योर ही समझना चाहिए, उस शौक़ को आगे लेके चलना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, ब्रीडों को सेव करना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छी हालत में मिलना भी एक नेमत से कम नहीं है। इनको खालिस ब्रीड कह सकते हैं, इनको ओल्ड ब्लड लाइन कह सकते हैं। अगर इनको खालिस ब्रीड कहा जाए या ओल्ड ब्लड लाइन कहा जाए तो वो अच्छा होगा बनिस्बत प्योर कहने की, ठीक है। अब पीलों में सर सावा ऐड किया जाए तो उनका कलर तकरीबन इस तरह का बनेगा, ठीक है। और अगर लाल ऐड किया जाए तो फिर इस तरह का कलर बनेगा। अब पीलों में मुश्की ऐड किया जाएगा तो इस तरह का कलर बनेगा, ठीक है, ठीक है। वो बानी बता दिया सैयद अल्लाह बख्श पीला ब्रीड के। दोस्तों ये खालिस ब्रीड है। ये जो सोनतोल पीले हैं ये खालिस बर्ड में आते हैं, ठीक है। अमरोहा ये भी खालिस परिंदे हैं, मेठी ये भी खालिस ब्रीड है, और जो सोनतोल पीले हैं ये भी खालिस असील है, ठीक है। अच्छा जो ओल्ड ब्लड लाइन होगी ये खालिस होंगे ना, ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। असल खूबसूरत भी यही असील हैं। जो पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन है ना तो खूबसूरत भी यही परिंदे हैं। तो जैसे ही आप इनको देखेंगे ना ओल्ड ब्लड लाइन को या पीलों को या अमरोहों को या मुश्किल आसानियों को, तो सबसे खूबसूरत यही असील है। और सिर्फ खूबसूरती पे बात नहीं रुकती, असील भी बहुत ज़्यादा हैं और मैदानों के लिए भी समझे कामयाब यही ब्रीड हैं जी, क्योंकि असल नस्ल या असल ब्लड यही है। आगे लोगों के पास फिर क्रॉसेस में चीज़ें चली हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल हालत में तो बहुत कम है, तो फिर आगे लोगों के पास क्रॉसेस में चीज़ें मौजूद हैं। किसी के पास पीलों का क्रॉस है, किसी के पास अमरोहों का क्रॉस है, किसी के पास मेठियों का क्रॉस है, ठीक है। सील लवर्स वजह क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों पाई जाती है, कन्फ्यूजन क्यों ये लोग जनरेट करते हैं, इनको असल में ख़ुद पता नहीं है, नॉलेज कम होता है। एक दो बातें कहीं से सुनते हैं वो बयान कर देते हैं, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से गरा बरा शामिल कर देते हैं, उधर फिर लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी असील लवर्स फ्रॉड के कई तरीके हैं, ठीक है ना। फ्रॉड के कई तरीके हैं। आजकल लोगों ने चैलेंज लगाए हुए हैं, ठीक है ना। ये बड़ा सौखा तरीका है चैलेंज लगाने का। चैलेंज अमरोहा, चैलेंज लसानी, चैलेंज पीला, ठीक है ना। तो आजकल लोगों ने ये सौखा तरीका है फ्रॉड करने का। चैलेंज दो, जब कोई एक्सेप्ट करे चैलेंज तो फिर उधर से भाग जाओ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब का दिया हुआ इल्म है, मैं को खुद से जो है ना मुझे कोई इस चीज़ का वो नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बड़ा जो है ना सादा सा इंसान हूँ, ज़रूर नहीं है हमें। हम ये जो इन्होंने कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन फैलाई हुई है ना, उस पर इतना ज़्यादा थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें को अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं है, ये रब का दिया हुआ जो है ना इल्म है, ठीक है ना। और मेहनत है हमारी, जो थोड़ी बहुत ब्रीडिंग कराई हुई है, शौक़ किया हुआ है, 14-15 साल लगाए हुए हैं, वही एक्सपीरियंस वही चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, आप दोस्तों की आसानी के लिए। उनके बारे में ज़रूरी मालूमात थी वो दे दी है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने आपको बिल्कुल ही जो है हर चीज़ खोल के रख दी है, फिर कुछ चीज़ें हैं वो हम इस तरह ओपनली नहीं बयान कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे पास कंटुट्टों के लिए मौजूद रहती हैं फक्कियाँ, क्योंकि हमने फिर ओपन भी कहा होता है ना, तो वो तो शायद वीडियो देख के आ जाएं और कहेंगे जी जनाब ये चीज़ें हैं। तो फिर हमारे पास इसके अलावा भी इंशाल्लाह नॉलेज इतना होगा इन ब्रीडों के बारे में कि जो हम ऑन एयर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना।
वो ऐसी ऐसी पक्कियाँ होंगी कि वो बेचारे फिर इधर बैठ के जो है ना ऐसे ऐसे करेंगे कि हम किधर फंस गए। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह शौक़ है यार, शौक़ करें, ठीक है ना। हसद मुनाफकत से बचें, चीज़ों को समझा करें। किसी अच्छे जो है ना, जो अच्छा उस्ताद है ना, किसी अच्छे उस्ताद की बातें सुना करें, अच्छे उस्ताद से सीखा करें। अच्छे उस्ताद काफ़ी मौजूद हैं। पुराने उस्तादों में हमारे कज़न हैं इकबाल ख़ान पुनू खैल, उनकी बातें सुना करें। पुराने शौकीन हैं, चाचा जावेद खान अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, पुनू खैल, ठीक है ना, चाचे थे हमारे वो भी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनके घर मतलब शौक़ है, 30-40 साल से शौक़ है। तो ऐसा उस्ताद जो बैठे, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है, पुराना शौक़ है। तो किसी शौकीन की बात सुना करें, ठीक है ना। कंटुटों की बातें ना सुना करें। कंटुटों की बातें सुनेंगे तो फिर उधर ही आपके साथ ये मसाइल पेश आएंगे, कंट्रोवर्सी, कन्फ्यूजन, ये मसले मसाइल पेश आएंगे। कोशिश यही करें, शौकीन की कदर करें। आपसे कोई सीनियर शौकीन है ना, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी कदर करें। अगर किसी के पास नॉलेज है, आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है, चलो यार आपको 50% ही बता रहा है ना, तो बता तो रहा है ना, तो शौकीन की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं कल परसों एक टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था, एक सीनियर शौकीन है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं। सीनियर शौकीन है, तो वो एक आँख पे, मुश्की की आँख पे उन्होंने डिस्कशन की है। तो उसमें कई पॉइंट उसने सही बताए और कई पॉइंट नहीं बता पाया। तो सीनियर शौकीन है, मैंने वीडियो भी देख ली है, मैंने लाइक भी वीडियो को कर दी है, मैंने कमेंट्स नहीं किया कि नहीं आपने ये चीज़ गलत बताई है या ये चीज़ ठीक बताई है। क्यों नहीं किया कमेंट? सीनियर शौकीन है यार, मुझसे सीनियर है, वो बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, पुराना शौकीन है। मुश्की की आँख जो है वो प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ थी, पता था उसका सारा कुछ, लेकिन फिर हमने उसके उसमें कमेंट्स नहीं किया। उसकी हमने वीडियो देख ली, सुन लिया, लाइक भी कर दिया, लेकिन हमने कमेंट्स नहीं किया कि आपने ये चीज़ें ठीक बताई हैं, ये गलत बताई हैं, आप नहीं बता पाए। ज़रूरत नहीं है ना। कई चीज़ें उसने ठीक बताई होंगी, कई चीज़ों पे उसको अबूर होगा, कई चीज़ों पे नहीं होगा, ठीक है ना। हर बंदा कई चीज़ों पे अबूर रखता है, शौकीन कई चीज़ों पे नहीं रखता। कई चीज़ें उसके तजर्बे में और तरह की होती हैं, तो फिर हम उसकी वो सारी की थी कराई पुरानी वो ख़त्म कर देते और उधर अपना लुज मार देते। नहीं, ऐसा ना किया करें, ठीक है ना। शौक़ को प्रमोट करें, अच्छे शौकीन की जो आपको थोड़ा बहुत सिखा रहा है उसकी कदर करें, ठीक है। चीज़ें खुद परखा करें, देखा करें कि जो बंदा बात कर रहा है उसकी चीज़, उसके खुडे की चीज़ किस तरह है। क्या वो जो 100% बात कर रहा है तो चीज़ उसकी 50% भी मैच करती है? अगर तो करती है तो ठीक है, या वो बातें तो कर रहा है, चीज़ नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, चीज़ नहीं सामने ला सकते। वो कहते हैं जनाब अमरुआ इस तरह का होता है, हम कहते हैं दिखाओ, ओ नहीं जी बस साढ़े गोल तक कोनी बकोनी तो लूजी ना मार, फालतू गल ही ना कर, ओ जी फलानी ब्रीड इस तरह होती है, चलो जी ले आओ दिखाओ। उधर फिर उनकी बस हो जाती है, वो जी हमने 60 साल पहले देखे थे, तो 50 साल पहले देखे थे, बाढ़ में जाए तेरा 60 साल 50 साल। सिर्फ ऐਵੇਂ ही चूतियापन कर रहा था, कहानियाँ कर रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। तो जो बंदा आगे सामने कोई समझ वाला होगा वो तो फिर गले से पकड़ लेते हैं। हम तो पकड़ लेते हैं, हम तो कहते हैं दिखाओ, हमसे फिर अच्छी चीज़ दिखाओ, ठीक है ना। बारकफ, खुश रहें, सलामत रहें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर खान नियाज़ी को दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।